with Mr. संदीप जोशी एंड डॉक्टर अमित चंद्रा. हमारे साथ निकिता मैम है और आप सेशन को मॉडरेट करें. यस जी. So am I audible? Yes, ma'am. Yes. Okay, thank you. So I would like to welcome you all to the first technical session or the first panel session on will the national education policy make the right to education more impactful. Now, we could not have a better start to the panel discussion because national education policy is the point of discussion everywhere in this country today. So, and perhaps the National Education Policy 2020 is the only good thing that has happened to us so far in the year 2020. So that remains the point of discussion for all of us. So we cannot have a better start to the conference. I'm privileged to have with us two experts in this particular field whose contribution to the field of education cannot be spelled out in very few words. But I will try my best to do justice by introducing both the panelists before us. So we have today with us Shri Sandeep Joshi ji. Now Shri Sandeep Joshi ji, sir, welcome you. Shri Sandeep Joshi ji is a practitioner and a senior educationist. He is currently a member of the National Council for Technical Education and is based in Jalore, Rajasthan. If I come to talk about his contributions, he is well known for leading the very successful campaign called No Bag Day. That the main focus was to reduce the weight of school bags of the students, and his other very successful and well-known campaign is the Jai Bharat attendance system. In his school, Sandeep Joshi ji has been known for inspiring various other schools for introducing ideas like Bharat Darshan corridor, use of botanical gardens, so on and so forth. So sir continues to remain an inspiration for bringing out changes in the education system across various schools. Recognizing this contribution of him, the Akhil Bharat Vidyarthi Parishad has conferred on him the award Yashwant Rao Kelkar Yuva Puraskar. Sir, we welcome you. The next panelist we have with us is Dr. Amit Chandra. Dr. Amit Chandra is known for his contribution in the field of policy research and strategic planning. Now, currently, he is the Associate Director of the Policy Advisory Wing of the Center for Civil Society, which we all know is a leading and a renowned think tank located in Delhi. Dr. Amit Chandra's focus is education and livelihood issues. And a glorious example of this is him leading the Jivika campaign. Now, the Jivika campaign was instrumental in bringing out legislations in the state of Rajasthan and Bihar. Legislations that actually gave legitimacy to street vendors' occupation. So earlier, something that was not considered, was not conferred as a matter of right. So the Jivika campaign has been instrumental in recognizing this particular right of street vendors. Now it is pertinent to note that Dr. Chandra's experience holds relevance not just in the Indian context. His experience also holds relevance in Afghanistan. So he has been extending his knowledge and his technical support to the Ministry of Education, Afghanistan. Some of other Dr. Chandra's contribution to public policies relating to street vending, amendments to the Forest Act 1927, the MSME Act, and many others. Dr. Chandra, we welcome you on board. Now, before going on to hearing from both the eminent panelists we have before us, I'll try to set a brief context to the discussion for today. So in today's discussion, what we are primarily trying to look at is, will the national education policy really ensure that implementation and our right to education becomes more impactful? Now, when I was thinking about this particular idea, there were two things that I found very intriguing. But the first thing is that if you look at the national education policy, a prima facie reading of the policy shows that the national education policy does not really acknowledge or highlight the constitutional rights of children as such. And right to education, which primarily comes as a constitutional right, the national education policy does not a bit acknowledge the presence of any such constitutional mandates.
So I would go back to discussing the situation in 2019 when we had the draft national education policy which came out in the public. It was being celebrated by many educationists. So Yogendra Yadav ji, an educationist and a policy scientist or political scientist who works in the field of education, he came out in public to applaud that what a brilliant piece is the National Education Policy 2020 going out to be. Now, one particular thing that he said in that, one particular thing that he applauded, was that the National Education Draft Policy was planning to expand the scope of right to education. So from making it to 6 to 14 years, it seemed that the National Education Policy is trying to expand it to 3 to 18 years. And that definitely was a welcome move in terms of Right to Education Act. But sadly, when we had the final policy, the National Education Policy in 2020, we didn't see any such reference or any such expansion of the scope of right to education. This is one intriguing thing. The second intriguing thing that I came across is the National Education Policy talks about universal access. So instead of talking about participation as a right and completion as a right, the focus is more on non-formal systems of education. So which means they are trying to encourage homeschooling, open schooling, gurukuls, madrasas, or ekal vidyalayas, so on and so forth, such informal modes of education. Now, what needs to be seen is whether encouraging such informal modes of education, is it really meaning that we are weakening the right to education? Or is it really meaning that the obligation on the state to ensure a right to education is going down because we are now encouraging homeschooling? So these two intriguing factors, keeping that in mind, I would now like to hand it over to Sandeep Joshi ji and Dr. Amit Chandra ji by posing certain questions for them through which we can carry the discussion further. So Sandeep ji, पहले मैं आपसे के हिसाब से हमें ये बताएं कि जब से क्षेत्र में क्या सब बदलाव आया है। सबसे पहले तो आप सभी को शक्ति साधना के पर्व नवरात्रि की शुभकामनाएं। ये पूरा जो टाइम पीरियड है देश भर में दुर्गा पूजा का अवसर है, शक्ति साधना का पर्व है और आज दूसरा दिन ही मुझे लग रहा है एक प्रकार से ये शैक्षणिक यज्ञ जैसा हो गया, एक एकेडमिक यज्ञ चल रहा है हम सभी का और सारे अच्छे लोगों सुन रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के विद्वान अपनी अपनी आहुति इस ज्ञान यज्ञ में दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा अवसर है मेरे लिए। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अभिषेक जी का इस अच्छे अवसर के लिए। योगेंद्र जी, अमित जी, सभी को नमस्कार। एक विषय को लेकर अभिषेक जी बड़ा चिंतित थे अभी कि हम लेट हो रहे हैं, कार्यक्रम काफी लेट हो रहा है। तो ऐसे मुझे मन में विचार आया कि कार्यक्रम लेट नहीं हो रहा है, बल्कि राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वह एक्ट भी बहुत लेट हुआ है। 100 साल पहले गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था अंग्रेजी शासनकाल में कि भारत में अंग्रेजों को सभी के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। बाद में महात्मा गांधी जी ने भी इस पे पूरा लेख लिखा। कारण ये था कि अंग्रेजों ने भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी, 1830 का कोई अंग्रेजों का आंकड़ा है, उस समय भारत में साक्षरता 98% है, 98% लिटरेसी है भारत में अंग्रेजी राज के अंदर, और लिखने वाले धर्मपाल जी हैं। बाद में गांधी जी ने उस पर एक आर्टिकल लिखा है द गोल्डन ट्री ऑफ एजुकेशन, भारतीय शिक्षा व्यवस्था का स्वर्णिम वृक्ष, इसी नाम से पुस्तक भी है धर्मपाल जी की। तो जितना छिन्न भिन्न किया अंग्रेजों ने शिक्षा, देश के शिक्षा सिस्टम को, तो गोपाल कृष्ण जी ने कहा था लगभग 1910 के आसपास कि भारत में सबके लिए निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, संविधान के नीति निर्देश तत्वों में शामिल किया गया 1950 में भी कि सबके लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, और लागू करते करते हमको 2010 आ गया। इसलिए आरटी स्वयं अपने आप में बहुत लेट चल रहा है, तो हमारा सेशन लेट हो गया, कोई खास बात नहीं है। आरटी के आने के बाद जो आप पूछ रहे हैं शिक्षा में क्या क्या बदलाव हुए, तो मुझे लगता है बहुत सारे बदलाव हुए हैं, क्योंकि आरटी लागू होने से पहले भी मैं शिक्षक था और अभी भी शिक्षक हूँ। एक जो बेसिक चीज हुई है वह हुई है प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट कम हुए हैं, ये तो हमको मानना पड़ेगा। हालांकि अमित जी बताएंगे हमको आरटी में बहुत सारी कमियां भी है, पर बहुत सारी कमियां होते हुए भी आरटी ने बहुत कुछ अच्छा भी किया है। तो पहला काम जो अच्छा किया वो तो ये कर दिया, प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट कम हुए हैं। 6, 7, 8 क्लास हालांकि बढ़ा है परसेंटेज, मगर प्राइमरी लेवल पर कम हुआ है। फिर दूसरा, पहली बार बच्चों के अधिकारों को समझा गया, और उसको लेकर जो बाल संरक्षण आयोग की गतिविधियां आजकल बहुत एक्टिव हुई है एनसीपीसीआर की, पहले इतना एक्टिव नहीं था ये।
बच्चों के मन में एक हमारा भी कोई अधिकार है। और बाल अधिकार जैसे नया कंसेप्ट भी बहुत चर्चा में आया, ये एक बड़ा अचीवमेंट हुआ। पहले जब सुनते थे बहुत सारे स्कूलों में, बड़े स्कूलों के अंदर एडमिशन के लिए पेरेंट्स की स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ करते थे, आजकल वे बंद हुए हैं आरटी आने के बाद। तो अभिभावकों को अपना साक्षात्कार देने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक जो बात चली थी, गरीब और दुर्बल एवं अभावग्रस्त जो शब्द काम में लिया गया आरटी के अंतर्गत, उस वर्ग के बच्चों को 25% एडमिशन बड़े स्कूलों में मिलेगा। तो हर अभिभावक की इच्छा होती है कि उनके बच्चे भी नोबल स्कूल्स में पढ़ें, और आरटी ने उनको एक अधिकार दिया है, उनके बच्चे भी बड़े स्कूल्स में पढ़ें, बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छा एक विकल्प दिया है। और इसका दूसरा पहलू यह भी है कि हमने सरकारी स्कूलों को इस लायक नहीं समझा कि हम अपने स्कूलों को इतना अच्छा बना सकें कि बच्चे यहीं पर उस नोबल एजुकेशन प्राप्त कर सकें। तो ये 25% वाला कंसेप्ट उपलब्धि भी है, और एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी है हमारे सिस्टम के ऊपर भी है कि हमारा अभिभावक क्यों चाहता है प्राइवेट में जाना, हमारे पास क्या क्या कमियां है। वो जो मैम बता रही थी अपराजिता जी, कि स्कूलों को देखकर अभिभावक को लगता है स्कूल आकर्षक नहीं है, स्कूल बिल्डिंग अच्छी नहीं, क्या भेजेंगे। तो हम इतने वर्षों में क्यों नहीं कर पाए। तो आरटी ने जो सिस्टम किया 25% वाला, वो अच्छा भी है और क्वेश्चन मार्क भी है, हमें अपने आप को थोड़ा ठीक करना ही चाहिए। फिर आरटी आने के बाद शिक्षक भर्ती बढ़ी है। हालांकि जो पैटर्न दिया गया था 30:1 का शिक्षक छात्र अनुपात, वह पूरा नहीं हुआ, मगर फिर भी निस्संदेह आरटी आने के बाद देश भर में शिक्षकों की भर्ती बहुत हुई है। लाखों की संख्या में नई भर्तियां हुई है। स्टाफिंग पैटर्न आया है, हर 2 साल में रिवाइज किया जाता है, और 10% से अधिक बच्चे ये टीचर्स की पोस्टें वैकेंट नहीं रह सकती है। यह एक बहुत अच्छी चीज हुई है। मनमाने शुल्क जो लिए जाते थे वे बंद हुए हैं। भारी भरकम डोनेशन था वह बंद हुआ है। कानून बनने से शिक्षा का अधिकार, कानून बनने से शिक्षा को बहुत लाभ हुआ ही है। कुछ कमियां हैं, हम सब लोग आपस में चर्चा चिंतन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ठीक कर सकते हैं। थैंक यू जोशी जी। जी नमस्कार जी। My next question is to Dr. Amit. So I would like to know, since you have been working in the policy advisory as well as the education system working together, what is the change that you see before RTI and right after RTI? So if you compare and contrast the system before RTI and right after RTI, what is the changes that you notice in the system? Thank you very much, Nikita. Am I audible properly? Yes, sir, perfectly. ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अभी तक जितनी बातें हुई ना, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं जो कि एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट होगा, एकदम काउंटर इंट्यूटिव अभी तक जितनी बात बोली गई है। तो आपके क्वेश्चन पे आने से पहले, इनफैक्ट वो क्वेश्चन का आंसर उसमें कवर्ड होगा। मैं क्या करता हूं, जब अभी इन्होंने बोला ना कि हम लोग लेट हो रहे हैं, लेट तो नहीं हो रहे थे, हर चीज का एक टाइम होता है। लेकिन तब तक मैंने क्या किया, जितनी बातें हो रही थी उस पे एक छोटा सा पीपीटी बनाने की कोशिश की। तो बहुत सारी इसमें कमियां हैं, लेकिन क्योंकि ये अभी आप सबकी बातें सुनते सुनते ही जो मेरे पास उपलब्ध नॉलेज था उसी पे बनाया है। और बहुत ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा आपका इससे आंसर मिल जाएगा। एंड इससे पहले कि मैं बोलूं, इट इज माय वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू टेक ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टॉक is more as a very humble suggestion, as not a critique. We are not here to kind of critique and argue with each other, बल्कि अपनी बातों को रखें, चर्चा करें, जिससे कि हम सभी को बेनिफिट हो और उससे ज्यादा एजुकेशन, हमारे शिक्षा सिस्टम को बेनिफिट हो, ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा बने। तो जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं ना, और खासकर राइट टू एजुकेशन एक्सेट्रा, 2-3 की पॉइंट्स हैं जो बैकग्राउंड में पहले अपने आप को समझ के रखना चाहिए। अगर ये पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं है तो इट डजंट मैटर कि आप आरटीई की बात कर रहे हो, कि एनईपी की बात कर रहे हो, कि करिकुलम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, या कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इट डजंट रियली मैटर अगर आपको वो बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट का नहीं समझ है। और उसमें बस 3-4 क्विक पॉइंटर हैं कि नंबर 1, ब्रॉडली एजुकेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट। यस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के फ्रेमवर्क में, यस, लेटर ऑन इट वाज शिफ्टेड टू कॉन्करेंट लिस्ट, लेकिन वो एक अलग बात है। अभी भी स्टेट इज द मेन अथॉरिटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल फिर कहाँ तक रह जाता है, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट करने में, गाइडेंस प्रोवाइड करने में, फैसिलिटेट करने में, नॉलेज बिल्डिंग करने में, वगैरह वगैरह, रिसर्च करने में, यू नो, बट मेजर पावर स्टेज विद द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है,
स्टेट इज द वन विच मेक्स पॉलिसी। और अभी जब भी हम एक एजुकेशन सिस्टम की बात करने लगते हैं तो लोगों को लगता है एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है। नहीं, इंडिया में लगभग 30 तरीके के बोर्ड हैं, क्योंकि हर स्टेट का अपना अलग बोर्ड है, अपना सिस्टम है। उसमें थोड़ी आपको यूनिफॉर्मिटी मिल सकती है, लेकिन फिर भी वो अलग अथॉरिटी हैं। तो जो केरला और कर्नाटका में मॉडल हो रहा है, जिस तरीके से पढ़ाई हो रही है, वो जरूरी नहीं है कि यूपी और बिहार में भी हो रहा हो, राइट, या राजस्थान या हरियाणा में हो रहा हो। नेक्स्ट चीज हमें समझ लेना चाहिए कि जब भी हम गवर्नमेंट से कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इन टर्म्स ऑफ लॉ इम्प्लीमेंटेशन, दैट गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज अ वेरी वीक कैपेसिटी। उनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, वो कुछ भी कर सकते हैं ना। सरकारों का भी एक लिमिटेशन होता है। अब फॉर एन एग्जांपल कास्ट के लिए कब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी बोल दी, राइट? कास्ट के बेसिस पे या किसी भी चीज पे, बट डिस्क्रिमिनेशन होते रहते हैं ना, बिकॉज सोसाइटी हैज नॉट एक्सेप्टेड। तो सोसाइटी को आप कैसे एम्पावर करोगे, अवेयर करोगे, एजुकेट करोगे, जब तक वो सारे फैक्टर, सारे स्टेक होल्डर साथ नहीं आएंगे ना। एक केवल लॉ पास कर देने से आपका कुछ खास बातें बनने वाली नहीं है। सो इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, ओके। नेक्स्ट मैं बोलूंगा कि जब हम स्कूल की भी बात कर रहे हैं ना, तो स्कूल एक तरीके के नहीं है। इंडिया में कई तरीके के अलग अलग स्कूल हैं, अलग अलग स्टेट बॉडी है, इसीलिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट मॉडल ऑफ एजुकेशन सिस्टम। मैं उसको गिनूंगा नहीं, बहुत लेट हो जाएगा, आई विल जस्ट रश थ्रू इट। हाँ, जैसे ही हम एक्ट की बात करते हैं ना, तो एक्ट की अभी हमारे पास जो योगेश प्रताप जी थे, उन्होंने उस कहानी की शुरुआत की तब से जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में बात होने लगी थी इंडिया में, और फिर 2002 में जो 86th अमेंडमेंट हुआ। मैं इस कहानी का एक लिंक जोड़ूंगा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो कि यूएन ने डिक्लेयर किया था, इनफैक्ट वन ऑफ द पीपल आल्सो टॉक्ड अबाउट कि भाई हमारे यूएन डिक्लेरेशन के हिसाब से वी कंप्लाई विद द गाइडलाइंस और नॉट। सो यस, तो एक्ट के बैकग्राउंड में तो कहूंगा कि सबसे पहले 2000 ईयर में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बना, जिसमें एक गोल रखा गया एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन टू एजुकेशन। सो यूनिवर्सल एक्सेस सबके पास होना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने साइन किया था ईयर 2000 में, व्हेन दे केम बैक तो उनको अब कुछ करना था। सो 2000, अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे सर ने भी बोला ना, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी और उससे पहले भी जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था, तब से ये बात हो रही थी कि बच्चों का राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट होना चाहिए। और वो भी किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी कि अगर हमें डेमोक्रेसी को सस्टेन करना है, जिसमें इलेक्शन होना है, जिसमें लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, और वो अगर एजुकेटेड नहीं है तो हमारी डेमोक्रेसी कैसे सस्टेन करेगी। तो उस फ्रेम में बात हो रहा था कि भाई then it becomes state responsibility to make sure that everyone is educated। ठीक, तो बातें तो कब से हो रही थी, लेकिन उस समय भी एक ये भी हुआ था कि एजुकेशन को हम फंडामेंटल राइट में रखेंगे, लेकिन नहीं रखा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ने। क्यों नहीं रखा? क्योंकि उन्होंने भी कहा कि अभी हम नए स्टेट बन रहे हैं, हमारी कैपेसिटी नहीं है, तो करने को तो हम लिख देंगे, लेकिन हम दे पाएंगे नहीं, तो ये बच्चों के साथ एक मजाक होगा, ये देश के साथ एक मजाक होगा, तो हमें नहीं करना चाहिए। खैर एनीवेज, सो फाइनली जब मॉडर्न ये ईयर 2000 पोस्ट 2000 में जब आरटी एक्ट की बात शुरू हुई, तो पहले मैं तो कहानी की शुरुआत करूंगा 2000 ईयर में जब मिलेनियम डेवलपमेंट का गोल था। गोल में इंडिया इज अ सिग्नेटरी, भारत ने साइन किया है, तो उन्हें वापस आके अपने देश में कुछ करना था। 86th अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन में टू इंसर्ट आर्टिकल 21A, और जिसके तहत इसको फंडामेंटल राइट बनाए। अब नाउ since it had become fundamental right, government had to do something to make sure that कि भाई इसको हम implement करने के लिए कुछ कर रहे हैं। इसका फर्स्ट ड्राफ्ट 2005 में आया था। 2005 में बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी, उस समय ये पार्लियामेंट में नहीं प्रेजेंट किया जा सका। फाइनली 2009 में प्रेजेंट किया गया, उस समय भी इसमें हार्डली डिस्कशन हुआ था, कुल 50-60 मेंबर थे उस समय जब ये पास हुआ था, और ये मतलब शोरगुल के बीच में पास हो गया था, इस पे कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं हुआ था। 2010 से नोटिफाइड है, राइट। अब इसमें जब भी इसका ऑब्जेक्टिव, ये सब तो मैंने बता दिया। मेजर प्रोविजंस क्या रहे हैं? मेजर प्रोविजन ये रहा है कि सबको कंपलसरी भेजना चाहिए, और क्योंकि कंपलसरी स्टेट कर रहा है तो चार्ज आप कैसे कर सकते हो, तो फ्री भी रहना चाहिए, तभी 100% हम अचीव करेंगे। अनदर मेजर प्रोविजन, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट, बहुत लोगों को तो आरटी का मतलब पूरा आरटी सेक्शन पूरा एक्ट से मतलब ही नहीं है, मतलब है केवल एक सेक्शन से, जो है कि सेक्शन 12, और वो भी 12(1)(c), जिसमें कि 25% रिजर्वेशन के बात आते हैं।
तो आम जनता से अगर आरटी पूछो तो उनके लिए बस यही मतलब है कि वो वाला कानून जिससे 25% हमें प्राइवेट स्कूलों में रिजर्वेशन मिला है। खैर, अनदर मेजर प्रोविजन वाज नो डिटेंशन पॉलिसी। नेक्स्ट मेजर प्रोविजन वाज कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना चाहिए, क्लासरूम, प्लेग्राउंड, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर एंड एवरीथिंग। टीचिंग पे फोकस था, उसके लिए क्वालिफिकेशन, कॉम्पिटेंसी, पीटीआर, उसी के बाद से टेट शुरू हुआ वगैरह वगैरह। ये पीपल टीचर रेशियो डिफाइन किया कि उस हिसाब से टीचर का और रिक्रूटमेंट होना चाहिए। सो हियर कमिंग टू नाउ योर आंसर टू योर क्वेश्चन पार्ट कि भाई ये तो इस पे इम्पैक्ट क्या हुआ और क्या चेंजेस हम सिंस 2009 देख रहे हैं। यहाँ पे जब चेंजेस भी हम देख रहे हैं तो उसको थोड़ा 2-3 भागों में बांट देना चाहिए। एक चेंज जो कि पोस्ट 2010 से नोटिफाई हुआ तो इमीडिएटली इंप्लीमेंट नहीं होना शुरू हो जाता है। हाँ, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लीगल आपको एम्पावरमेंट हो गया तो कोर्ट वोट में आप जा सकते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन इसका मतलब नहीं शुरू हो गया। इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 साल का उन्होंने रखा था कि भाई इतने सारे प्रोविजन है और स्टेट्स को मेनली करने हैं, तो 3 साल बाद लेट्स से 2013 से हम एम करते हैं कि इसके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। उससे पहले हम मेनली इट्स अ टाइम गिवन टू डू द एडजस्टमेंट एंड क्रिएट द प्रिपरेशन पार्ट ऑफ इट। एनीवेज, सो इम्पैक्ट जो मैं देखता हूं वो क्या हुआ, फ्री सीट्स इन प्राइवेट स्कूल्स जो था, इमीडिएटली प्राइवेट स्कूल्स गए, कोर्ट्स में चैलेंज होने लगे और दिस इज वन सेक्शन विच इज हाईली लिटिगेटेड। सबसे ज्यादा कोर्ट केसेस इस सेक्शन पे हुए हैं और प्राइवेट स्कूल्स सॉ इट एज एन एनक्रोचमेंट ओवर देयर ऑटोनॉमी कि हाँ ये स्वायत्ता हमारी है, प्राइवेट स्कूल हमारा है, हम अपने हिसाब से एडमिशन कर लेना है, नहीं लेना है, किसको देना है हम डिसाइड करेंगे, आप कैसे हमें फोर्स कर सकते हो, एंड दैट टू फोर्स बाय मैंडेटिंग एन एक्ट। तो इस पे बहुत हुआ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तो फाइनली स्कूल्स हैड टू। तो प्राइवेट स्कूल्स जितने भी आज भी के टाइम पे भी एडमिशन ले रहे हैं ना, उसमें से कुछ परसेंटेज हैं जो हैप्पीली ले रहे हैं, और वो भी क्यों ले रहे हैं वो मैं अलग से कभी बता सकता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स अनहैप्पीली ले रहे हैं, है ना। तो वो कोई ना कोई उसमें तरीका निकालते रहते हैं कि भाई इससे कैसे हमें बचना है या कम से कम ये एडमिशन हमारे पास आए। रीजन क्या है कभी और मैं बताऊंगा। मेनली नो डिटेंशन पॉलिसी, इम्पैक्ट क्या हुआ, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लर्निंग आउटकम आप देखिए गिरता जा रहा है। टीचिंग क्वालिफिकेशंस में जैसे मैंने बताया कि 2013 का टाइमलाइन दिया था, उसके बाद दिस इज वन सेक्शन व्हिच हैज गॉट एग्जम्पशंस, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशंस, तो ये वाले सेक्शन पे काफी एक्सटेंशन मिला है, जो कि इसके बाद आया था कि जो बीएड क्वालिफाइड नहीं है वो लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये जो प्रोविजनल एडजस्टमेंट किए जाएंगे वगैरह, वो सबको कुछ फॉलो नहीं हुआ है, तो गड़बड़ यहाँ पे है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात हुई थी कि क्लासरूम बनाएंगे, अच्छा दिखने में लगना चाहिए, फील गुड होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। MHRD का रिपोर्ट खुद 2015-16 में उन्होंने बोला था कि 8% स्कूल्स ओनली कंप्लाई विद द RTE इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स, एंड इनफैक्ट दैट लीड टू, अभी यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच की भी कमी आ जाती है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे आप जाओ इंस्पेक्शन के लिए, मान लीजिए DO से टीम जाता है, तो देखते हैं कि भाई यहाँ पे लेबोरेटरी नहीं है, फंक्शनल टॉयलेट नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है या टीचर नहीं प्रेजेंट है, तो नॉर्मली उनका अप्रोच क्या होता है कि इट्स अ गवर्नमेंट स्कूल, वी आर मैंडेटेड टू डू इट, तो ठीक है भाई ये नहीं है तो हम और ऐड करेंगे, अच्छा करेंगे। और सेम चीज अगर किसी प्राइवेट स्कूल में इंस्पेक्शन पे जाते हो और आपको दिखता है कि ये सब कंप्लायंस नहीं होता है, नॉर्मली योर अप्रोच हैपेंस टू बी कि ये लोग तो पैसे बनाने वाले हैं, फी तो hefty चार्ज कर रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे, इनको बंद करो। सो वो बाय डिफॉल्ट अप्रोच में वो डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। एनीवेज, and next is the major provision was that free and compulsory। अभी यहाँ पे एक में इससे की वजह से मैं क्या कहूंगा कि so far your parent was the guardian, so जब compulsory की भी बात हुई थी तो आप सोच सकते हो कि क्या इसके लिए प्रोविजन किए गए, हाउ वुड यू मेक कंपल्सरी। सो लेट्स से कि कोई पेरेंट है वो कहता है कि मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा, क्या करोगे आप? बच्चे को, पेरेंट्स को जेल में डालोगे, बच्चे को आप उठा के लेके जाओगे। एक्चुअली दिस वाज पार्ट ऑफ द 2005 प्रोविजन, जिसको कि बाद में फिर इन्होंने कपिल सिब्बल जिस समय HRD मिनिस्टर थे उसको थोड़ा डाइल्यूट कर दिया कि अच्छा इस पे इट्स अ कंपल्शन ऑन स्टेट एंड नॉट ऑन पेरेंट्स, तो इस तरीके से उन्होंने उस बात को खैर घुमा दिया।
सो अगर स्टेट भी हो गया तो फिर देन यू आर नो मोर द गार्जियन ऑफ द किड। मेरे बच्चे का मैं गार्जियन नहीं हूं, द स्टेट इज द गार्जियन। सो उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जितनी बातें अभी आपको बताई, हाँ कुछ कुछ अचीवमेंट्स में अभी तक जो बातें हुई हैं, एंड आई थिंक एवरीथिंग दैट आई एम टॉकिंग एंड गोइंग टू टॉक अबाउट इज विल साउंड मोर ऑफ अ काउंटर इंट्यूटिव, क्योंकि जितनी भी खूबसूरत है, मैं आरटी के बारे में मेरा पर्सनल नजरिया क्या है। राइट टू एजुकेशन एक्ट को मैं कहता हूं इज द पॉलिटिकल फ्रॉड committed to the nations and the children by the government। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। In my personal opinion, Right to Education Act is a political fraud committed to the nation, और ये फ्रॉड उस समय की जो गवर्नमेंट थी यूपीए की, मैं उन्हीं के सिर पे डालूंगा। खैर, so I'm no more trying to be political correct here, and this can incite many debates, and I'm happy to take those over। एनीवेज, हाँ तो शुरू में बात हुई थी, शायद योगेश जी ने कहा था कि बिटवीन 2009 टिल 2014 और 2019 का भी इंक्रीज इन अपर प्राइमरी एनरोलमेंट बाय रफली 19 and 20%, और अपराजिता मैम ने भी बोला। तो भाई ये तो फ्रॉड का हिस्सा है ना, ये तो दिखना ही था। क्यों? क्योंकि जो एनरोलमेंट था ना प्राइमरी स्कूल में, इवन बिफोर, लेट मी, अगर किसी स्क्रीन पे मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी, तो हाँ यहाँ पे अगर आप देखोगे ना 2004-05 में ये नीचे 94.27% ऑलरेडी हमारा प्राइमरी लेवल पे एनरोलमेंट था। 94.27 was already in 2004-05। हाँ 2004-05 में ही हमारा, सॉरी 2004-05 में नहीं, 2007 में। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो हम बता रहे हैं ना कि उसके बाद से एक्सेस बहुत बढ़ा है, एनरोलमेंट बढ़ा है, नो। एनरोलमेंट बढ़ना कब शुरू हो गया था? पोस्ट 1992। दो मेजर रीजन, एक मेजर रीजन कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, उससे लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ने लगी। तो अब लोग एजुकेटेड हैं। पहले क्या था, इकोनॉमिक कंपल्शन भी था ना, कि भाई मैं खुद ही गरीब हूँ, खाने को नहीं है, मैं बच्चे को क्या भेजूं। तो जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ता गया, एजुकेशन का एंटेनमेंट बढ़ता गया। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज सर्व शिक्षा अभियान, जो इससे पहले शुरू किया गया था, उसमें गोल रखा गया था कि एक्सेस प्रोवाइड करना है। उसके थ्रू ऑलमोस्ट हर गांव में स्कूल खुल गए थे। सो सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू ऑलरेडी बढ़ चुका था। सो जब 2009 में आप एक्ट ला रहे हैं और उसके बाद से आप उसको क्रेडिट दे रहे हैं एनरोलमेंट बढ़ाने का, नो। द ट्रेंड वाज पोस्ट 1991, enrollment level already had started increasing, and it had to increase whether you bring act or not। तो वो already हो रहा था, तो फ्री में आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं। सेकंड बात जो लोगों ने की कि हाँ अपर प्राइमरी में बढ़ा, तो अपर प्राइमरी में तो बढ़ना ही था ना। वाई? क्योंकि अभी तक क्या था, आपके प्राइमरी में बच्चे कम थे। अभी प्राइमरी में बच्चे जब आने लगे एक्स्ट्रा, और आपने नो डिटेंशन पॉलिसी कर दिया, तो पहले ड्रॉप आउट कहाँ होता था, आप फेल होने लगते थे, लर्निंग आउटकम जाने लगते थे, आप ड्रॉप आउट होने लगते थे। 8वीं तक तो आपने कह दिया कि नो डिटेंशन पॉलिसी, एंड देयरफॉर क्या ओपन, और उसमें भी इवन 3 साल तक बच्चा आपको स्कूल में आता नहीं है लेकिन एनरोल्ड है ना, आप उसका नाम रजिस्टर से हटा ही नहीं सकते, आप उसका नाम नहीं हटा सकते। तो वो 3 साल तक मिनिमम, वो अगर आपने एनरोलमेंट में नाम अपना दखल करा दिया, तो जहां तक मैं हूं, जोशी जी मुझे करेक्ट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट वो नाम हर साल वो बढ़ता जाएगा, चाहे आप स्कूल में आओ या ना आओ, डजंट मैटर। सो एनीवे, व्हाट आई एम मेनली सेइंग इज कि स्कूल एनरोलमेंट जो बढ़ा, ये हम गलत क्रेडिट देते हैं, इसका राइट टू एजुकेशन एक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। अपर प्राइमरी में जो आपको इंक्रीज्ड दिख रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ नो डिटेंशन पॉलिसी, तो वो भी खराब है। दूसरा चीज, इन सब चीजों में ये जैसे मैंने न्यूज की क्लिपिंग लगाई है, दिस न्यूज इज फ्रॉम यूपी, 1.11 करोड़ घोस्ट स्टूडेंट्स, सो दीज आर द फेक एनरोलमेंट। तो मैं उन सब चीजों पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, वो सब करप्शन के अड्डे बन रहे हैं। नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट, actually in some sense in my interpretation has also become right to employment act,
and specifically for teachers, I'm sorry to say. देखिए मैं कहीं पे undermine नहीं करना चाह रहा हूँ, but this is how I see the picture, and it will not be right if I don't tell you the picture I see. Anyways, हाँ, so टीचर एम्प्लॉयमेंट आप देखिए, अगर आप डेटा देख रहे हैं तो पोस्ट 13-14, क्योंकि आरटी एक्ट ने मैंडेट किया है, ये ग्राफ में नंबर ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट ज्यादा हुए हैं, टीचर रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा हुए हैं, बट ये भी देखें कि हमारी टीचिंग की क्वालिटी भी खराब हुई है। बीएड पास, जो बीएड का पूरा कोर्स डिजाइन किया है हमने टीचिंग के लिए, वो जब टेट का परीक्षा लेते हैं तो 95% बीएड क्वालिफाइड लोग फेल हो जाते हैं। तो ये किस टाइप का क्या सिस्टम हम कर रहे हैं। उसका और खराब हुआ है कि लर्निंग आउटकम जो राइट टू एजुकेशन के में लगा के अच्छा अभी हमें बढ़िया मिलेगा, इट हैज कॉन्स्टेंटली डिक्लाइंड। लगभग 2014 के तो सर्वे में थे, लगभग 60% ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स कैन नॉट डू बेसिक लैंग्वेज एंड मैथ ऑफ क्लास 2। फिर से रिपीट कर दूं, 60% ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 कैन नॉट डू बेसिक मैथ्स एंड लैंग्वेज ऑफ क्लास 2। और उसमें भी देखेंगे कि अच्छा ये भी कि अच्छा ये खराब भी था, तो दिन पे दिन और हर साल दर साल खराब हुआ है। सो यहाँ पे देखेंगे कि अगर 2010 में एटलीस्ट ये 68% बच्चे कुछ कर लेते थे, तो 2018 में 43% ही कर रहे हैं। तो लगभग 20-25% पॉइंट और डिक्लाइन हो रहा है। तो जितना ज्यादा हम एक्ट बनाए हैं, लर्निंग आउटकम बच्चों का और ज्यादा खराब हुआ है। और केवल असर रिपोर्ट में भी नहीं, नाइस रिपोर्ट में भी आता है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी किया है, वो भी आता है। नेक्स्ट थिंग इन टर्म्स ऑफ बजट इम्प्लीकेशन, बजट में भी देखिए पोस्ट 2013-14 जबकि रियल इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है, कॉन्स्टेंटली ग्राफ आपको ऊपर की तरफ दिखेगा। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भले वो दिखे ना दिखे, आपको एलोकेशन ऑफ मनी हो रहा है। ये सारे मनी एक्चुअली जा कहाँ रहे हैं, एंड दैट इज वेयर आई सी इट्स बिकमिंग अ ह्यूज सोर्स ऑफ करप्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन खर्चा नहीं करना चाहता है, बिकॉज एवरीवन नोज कि वहीं पे सबसे ज्यादा कट बनता है कॉन्ट्रैक्ट के जॉब में। एनीवेज, Right to Education Act has also actually led to, instead of opening more schools, closure of more schools. ये आप देखेंगे एक हेडलाइन मैंने लगाया है कि जिसमें उन्होंने कहना है कि लगभग 1 लाख छोटे स्कूल्स बंद हो गए, और प्राइवेट ही नहीं गवर्नमेंट स्कूल्स भी बंद किए गए हैं। इनफैक्ट राजस्थान से जोशी जी हैं, राजस्थान में भी वो बता पाएंगे कि स्कूल्स एक्चुअली क्लोज भी हुए हैं, एंड ह्यूज नंबर। तो वो एक्ट जो कि और ज्यादा शिक्षा देने आया, उल्टे स्कूलों को बंद कर दिया, वंस अगेन आरटी कंप्लायंस के नाम पे। नेक्स्ट चीज मैं जो आपको बोलूंगा, हाँ एक और चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सारे जितने एक्ट आते हैं ना, टू गिव विथ अ ग्लोरीफाइड पैकेजिंग, ये आपके ऊपर कुछ बर्डन भी डालते हैं, और एक इसकी यही बर्डन है जो कि एजुकेशन सेस भी आपसे लेना शुरू किया गया। तो व्हेन आई इसके बारे में कभी और बात करेंगे, आई डोंट वांट टू टेक टू मच ऑफ टाइम, बहुत लेट हो रहा है। तो सेस से भी गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है पैसा बहुत, बट अनयूटिलाइज मनी उनके पास बहुत पड़ा हुआ है। एनीवेज, सो अल्टीमेटली जो आपका चेंज का है, तो नंबर 1 आई विल से द इम्पैक्ट ऑफ आरटीई इज all the parents, you are no more the guardian of the kid, the state is the guardian of the kid. Number 2, uncertainty of right and obligation, कि भाई किसका राइट क्या है। जैसे अगर प्राइवेट स्कूलों के पर्सपेक्टिव से सोचें तो ठीक है, आपका बच्चा है, और उसके लिए हमने पूरा ये सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट एजुकेशन का, तो भाई वहां पे जाए ना, वो आपने जो राइट दिया उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको प्रोवाइड करने की मेरी कैसे हो गई, राइट। तो वो थोड़ा उसमें एक अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। विलिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स उसके बाद से, और एनिमोसिटी, जो सबसे खराब इसका इम्पैक्ट मैं आज के टाइम पे देख रहा हूं। एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट जिसमें सारे स्टेक होल्डर को साथ में मिलके, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना है कि कैसे कर सकते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एनजीओज, ऑल ऑफ इट। और आरटी एक्ट के बाद क्या हुआ है, ये सारे स्टेक होल्डर गॉट डिवाइडेड एंड फाइटिंग विथ ईच अदर। पेरेंट्स फाइटिंग विथ स्कूल्स, स्कूल्स फाइटिंग विथ टीचर्स, टीचर फाइटिंग विथ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन फाइटिंग विथ एनजीओज। ये सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। This is what I see, and ultimately I also see that it has led to huge corruption. NEP पे अभी बात नहीं करते हैं, मैंने बहुत ज्यादा लंबा आपको आंसर दे दिया। Thank you.
No problem, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Sir, in light of whatever you have said, I have a follow-up question. If you could just take that and answer that briefly. 100%. आपके अब तक के इस पूरे impact assessment से what we have understood is, in your opinion, implementation successful नहीं रहा है. So if you could highlight 2 policy measures जो लिया जा सकता है to at least ensure that we are moving ahead in the path of successful implementation. If you could briefly highlight 2 policy measures. अच्छा, ये implementation पे भी मैं आपको बताता हूँ. I think इससे पहले के भी शायद अपराजिता मैम ने implementation पे बात की थी, और ये एक major statement है. कहीं पे जाइए, कोई से भी पूछे, इनफैक्ट यू गाइस आर लॉ स्टूडेंट्स, नॉर्मली कहेगा कि हमारे यहाँ पॉलिसी तो बहुत अच्छा है, कानून तो बढ़िया बने हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है. अभी आप सोचो कि पिछले हफ्ते iPhone 12 लॉन्च हुआ, एंड प्रेजेंटेशन में वो लोग कह रहे हैं कि भाई you know, it has 14 bionic chip and this kind of screen size and this kind of camera and everything. There is only one problem that we don't know how it is going to function, operate. तो क्या आप वो फोन लोगे, कहोगे कि इसमें सारे पिक्चर, या कार, इसमें you know सेफ्टी गियर है, 8 गियर्स लगा दिए हैं, ये लुक है, ये लाइट है, मगर चलता है? अभी हमने टेस्ट नहीं किया है, या चल पाएगा वो हमें मालूम नहीं है. So what I'm saying is, whoever and whenever you are making policy, and I work in policy segment, you have to keep in mind the practical implications कि यार ये implementable है कि नहीं है. अगर implement कर ही नहीं सकते तो फिर बनाया है क्यों? और I mean, और उसके नाम पे फिर जो फ्रॉडगिरी होती है. Anyways, so I have very closely watched all of this corruption happening. So अगर सही में मायने में अगर implement करना है, once again, let me come back to my previous statement when I said RT Act is a fraud. और ये कानून मैंने जितना भी पढ़ा है ना, और जितनी बार पढ़ता हूँ, मुझे लगता है पहले मैं भी कोशिश करता था कि मैं कुछ सजेशन करूं कि इसको कैसे इम्प्रूव करना है, क्या अमेंडमेंट करना है, और मैंने उस पर भी काम किया है. बट मोर एंड मोर आई रियलाइज दिस एक्ट इज सो बैड. इसको द ओनली थिंग इज यू स्क्रैप इट, और यही एकमात्र इलाज है, क्योंकि इसको जितना आप यू नो मॉडिफाई भी करने की कोशिश करेंगे, दैट विल क्रिएट इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि इसका डिजाइन ही इतना खराब है. तो उसको सुधारा नहीं जा सकता, निकाल दे. बट यहाँ पे मैं एक बात बड़ा क्लियर शब्द में बता दूं, जब भी मैं ये ऐसी बातें करता हूँ तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अच्छा अमित जी तो ये बच्चों के राइट टू एजुकेशन के ही खिलाफ है. नो, आई एम नॉट अगेंस्ट चिल्ड्रंस फंडामेंटल right to education. I'm against the way this act has been drafted to achieve it. बच्चों को वो राइट देने के लिए जो तरीके का एक्ट बनाया है उसके खिलाफ. तो नंबर 1 तो मैं कहूंगा कि यार हटाओ इसको, कुछ इसमें नहीं होगा. बट वो मुझे भी मालूम है वो हटने वाला है नहीं है. तो फिर क्या कर सकते हैं, उसके लिए कई चीजें ड्राफ्ट की हैं, बट एनईपी में उसको लिंक करता हूं कि 2-3 चीजें जो उससे समझ में आ सकती थी. नंबर 1, जहां पे कि मैंने बताया ना ये एनरोलमेंट वाला प्रॉब्लम, और अभी छोटे कम टाइम में कितना बातें बताऊं. नंबर ऑफ एक्चुअली एनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स हैज बीन डिक्लाइनिंग. तो बहुत सारे स्कूल्स इस वक्त ऐसे हैं, इनफैक्ट मेरे पास जो डेटा है दैट सेज रफली 40% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स have enrollment below 100, and below 100 मतलब 1 to 100, और एवरेज निकालते हैं तो उसका 45 के रफली आता है. तो बहुत सारे हैं, ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पे 0 एनरोलमेंट है, राइट. तो ऐसे स्कूलों का कंसोलिडेशन हुआ है. तो मेन आपको देखना होगा कि ये ट्रेंड बन रहा है. अच्छा, स्कूल्स बंद हुए हैं, बच्चे एनरोलमेंट का गवर्नमेंट स्कूल में डेटा देखेंगे, बट ओवरऑल बढ़ रहा है. कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि इंक्रीज हुआ है प्राइवेट स्कूल एनरोलमेंट, इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ स्कूल्स, इंक्रीज हुआ है वहां पे लर्निंग आउटकम भी. एनीवेज, दैट मेक्स मी साउंड मोर लाइक एन एडवोकेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, बट मेनली मेरा है कि बच्चे को मिलना चाहिए, डजंट मैटर गवर्नमेंट और प्राइवेट. सो दैट इज लाइक आई कीप सेइंग दैट यू नो द पॉलिसी हैज टू बी स्टूडेंट सेंट्रिक, नॉट द एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रिक, नीदर द टीचर सेंट्रिक. एनीवेज, तो उसको कट डाउन वो होना है, और उसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया है स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम. इन माय ओपिनियन वो क्लस्टरिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज आल्सो नॉट रियली गोइंग टू वर्क आउट. सो व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम? द मेजर प्रॉब्लम इज द गवर्नमेंट्स हैव टू एक्नॉलेज दैट इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी.
इफ यू वर्क ऑन दीज फैक्टर्स तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे इन डेज टू कम। अगर ये आप नहीं डाल सकते हैं तो नो मैटर व्हाट यू डू, अभी तक मिड डे मील भी दे रहे थे, अभी तो ब्रेकफास्ट मील भी देना है एनईपी के हिसाब से, और बहुत सारी चीजें करने हैं, बट ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल नॉट गिव यू रिजल्ट। Thank you, Dr. Amit. Thank you so much for your insight. संदीप जी, मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। तो प्रीवियसली आपने ब्रीफली हमें बताया कि आपके हिसाब से पिछले 10 साल में आरटी के आने से क्या क्या चीजें बेहतर हुई हैं। तो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से हम सबको काफी उम्मीदें हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने से आरटीई का जो पूरा सिनेरियो है ये और बेहतर हो जाएगा, या क्या प्रभाव पड़ेगा एनईपी का पूरे आरटीई के इम्प्लीमेंटेशन पे? बहुत बेहतर हो जाएगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है, मगर यह जरूर है कि चुनौतियां बढ़ जाएगी। कारण अभी केवल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे इस रेंज में थे, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे इसमें आ जाएंगे, तो काम बढ़ने वाला है। आरटी का जो क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा, इसलिए चुनौतियां बढ़ेगी आरटी के सामने। और जैसा अभी अमित जी बता रहे थे, अभी भी ऐसा है तो बाद में तो कैसा दृश्य होगा, ये भविष्य पर निर्भर करता है। दूसरा, आरटी में ये भी प्रावधान है कि हर 1 किलोमीटर में बच्चे के निकटतम स्थान पे विद्यालय हो। वो जो बात की अमित जी ने, कोई नामांकन बहुत जगह कम है, 100 से भी कम है, उसका कारण ये है कि स्कूल 1 किलोमीटर देनी है। अब आप आरटी के दायरे में 12th तक स्कूल ले आए, अभी तो 8वीं तक ही मामला था, अब आपको यदि 1 किलोमीटर में 12वीं तक स्कूल देनी है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी आरटी के सामने। वो कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे? तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला है एनईपी के अंदर, वह ये है कि ऐसे जो जनजातीय क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, उन सब में आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम होगा यदि ऐसा हो जाएगा। अभी जो नवोदय की संख्या है या केवी संख्या है, ऐसे नवोदय यदि बढ़ते हैं बहुत अधिक गुना अधिक संख्या में, तो शायद आरटी भी सफल होगी और एनईपी भी सफल होगी। ऐसे कुछ चीजें हैं तो अच्छा है। पर एनईपी आने के बाद शिक्षा का जो दृश्य हम जो सोच रहे हैं, जैसी अपेक्षा कर रहे हैं अमित जी और हम सब, देश के लिए जो शिक्षा होनी चाहिए, या पहले की जो बात चली मूल्य आधारित शिक्षा की, सीखना है वास्तव में, केवल रोजगार नहीं है, तो ड्रॉप आउट का जो कारण मुझे ध्यान में आता है राजस्थान में, हमारे यहाँ के अधिकांश लोग 5वीं 7वीं 8वीं पढ़ने के बाद दक्षिण भारत के राज्यों में जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल छोड़ते हैं। और सामान्यतः अभिभावकों को लगता है कि आज की पढ़ाई उसके बच्चे के काम की नहीं है, वो केवल रट रहा है, अंग्रेजी हिंदी में 4 कविता रट लेगा, उसका रोजगार से कोई संबंध नहीं है। और सबको ये लगता है जो पढ़ लिया है बीए पास, उसको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। हम जब रोजगार की बात करते हैं, मांग करते हैं 10 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार की, तो हमको लगता है गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो एनईपी के अंदर इसका अच्छा समाधान दिया है, 6ठी कक्षा से ही बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, और उसके लिए प्रैक्टिकल भी करना है उस बच्चे को, 100 घंटे के आसपास का उसका प्रोजेक्ट वर्क है, उसको करना ही है। उसके गांव में, उसके आसपास की सराउंडिंग में जो जो चल रहे हैं रोजगार, चाहे वो कपड़ा बनाने का है, चाहे मिट्टी के बर्तन का है, चाहे लकड़ी का है, चाहे भवन निर्माण का है, उसमें कहीं नहीं उसको जुड़ना है और लगभग 100 घंटे का प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है। तो इस कारण से मुझे लगता है ड्रॉप आउट भी कम होंगे और शिक्षा जो है अपने सही रास्ते पर आएगी। शिक्षा की जो कल्पना है हम सब की है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने वाली, शरीर मन आत्मा का विकास करने वाली, जो गांधी जी की भाषा में 3H, हेड, हैंड एंड हार्ट, उन सबका डेवलपमेंट करने वाली। तो एनईपी इस दृष्टि से मुझे लगता है बहुत पावरफुल हमारे पास दस्तावेज आया है। कितना लागू हो पाएगा, वो जो बात चली थी कि लॉ के स्टूडेंट के रूप में हर नीति बहुत अच्छी होती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो सकता है, उसको लागू कैसे किया जाएगा, वो एनईपी पर भी लागू होता है। पर एनईपी नो डाउट आरटी को अच्छा करेगी, आरटी के सामने चुनौतियां बढ़ेगी, किंतु शिक्षा का दृश्य जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और अन्य विद्वानों से भी आग्रह है, कई बार शिक्षा से जुड़ी जितनी सेमिनार में हम जाते हैं, तो जब सेमिनार में जाते हैं तो हमारे दिमाग में 4 समस्या होती है, जो लौटते हैं तो समस्या 10 हो जाती है। तो हम केवल समस्याओं का सॉल्यूशन निकलेगा ना, जैसे मुझे लग रहा है अमित जी का बहुत अच्छा अनुभव है, देश भर में और देश के बाहर भी काम किया है, तो हम स्कूल शिक्षा.in या लीगल एड ऐसे कुछ मिलकर इसका वैकल्पिक दस्तावेज ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए हमको। यदि आरटी में कमियां हैं तो उसका विकल्प क्या है, जनता द्वारा बनी हुई आरटी क्या हो सकती है। यदि हम सब लोग मिलकर कर पाएंगे ऐसा, तो मुझे लगता है आज का जो हमारा ये सम्मेलन है, ये सेमिनार है, बहुत फ्रूटफुल रहेगी पूरे देश के लिए भी और एजुकेशन सिस्टम के लिए भी। जितनी कमियां हैं उनका विकल्प क्या है, हमको विकल्प बनना चाहिए, हमको अब समाधान देना चाहिए। कठिन होगा, मुश्किल होगा, पर प्रयत्न करेंगे मिलजुल कर, यहाँ इसका सोल्यूशन ये है। चुनौतियां है ही बहुत सारी, पर एनईपी मुझे लगता है इन सब चुनौतियों का सामना करेगी और ठीक प्रकार से शिक्षा का एक अच्छा दृश्य हम सबके सामने आएगा
और शिक्षा जैसी हम कल्पना करते हैं वैसी शिक्षा शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का विकास करने वाली, रोजगार भी देने वाली और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने वाली होकर उभरेगी, ऐसा मुझे लगता है। Thank you, Joshi ji. Thank जी। you so much. So we have heard both the panelists before us, their opinion on the Right to Education Act, the challenges that the act is posing, and how the national education policy will impact the implementation of the Right to Education Act. संजय जोशी जी ने हमें, संदीप जोशी जी ने हमें बताया कि कैसे challenges तो जरूर है NEP के आने से, but what we are looking forward to is, even though there are challenges that the NEP is posing on the right to education, but still there is some scope that it will together result in a better position or a better situation in the entire educational system. And I'll particularly try to highlight his point where he said in seminars of this forum or seminars of this nature, we've been often discussing problems and challenges. हम ये क्या कर सकते हैं to make sure कि इस challenges का solution क्या निकाला जा सकता है. So इस deliberation का मतलब ये नहीं है कि हम challenges discuss कर रहे हैं और problems discuss कर रहे हैं, because that is enough done. हमें क्या करना चाहिए कि इन challenges के solutions निकालने चाहिए. So I think with the help of experts like Dr. Amit and Sandeep Joshi ji, हम इन deliberations को आगे ले सकते हैं, something beyond this conference, and with the help of Sarkari School, we can come up with something specific and concrete like a policy document. Dr. Amit ने भी बताया कैसे उनकी opinion में he thinks the entire Right to Education Act is a fraud and it needs a complete overhaul. So छोटे मोटे amendments or changes to the act is not going to solve the purpose, it needs the overhaul. So when we talk about an overhaul, क्या चीजें ऐसी नई होनी चाहिए? So what are the new things that we need to note down in a policy document? I think be with the help of experts at the National Law University Odisha, with the experts like Dr. Amit and Sandeep ji, and with Sarkari School, will definitely have a positive outcome to this particular conference. I would like to thank you all for attending it. Thank you, Dr. Amit. Thank you, Joshi ji.